دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس آنے اور بات چیت کرنے کی اور جو ہم نے کوشش کی ہے اسے قبول فرمائے، اور خاص کر محی الدین صاحب کے حق میں، اور ان کا جو بچہ مقتول ہوا ہے، قتل ہوا ہے، جس کا محبوب اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان تمام احباب گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین متوجہ ہوں، اور خاص کر محی الدین صاحب کی حالت دیکھ کر آپ حضرات متوجہ ہوں اور ان کا ساتھ دیں صبر میں، اور جتنے بھی جو بھی کام ہیں ان کے آگے، ان کا مکان بھی بنانا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اور ان کے نوجوان 2 بیٹیاں بھی ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، تمام مسائل ہیں۔ آپ حضرات غور کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ایک اور بات آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جو معاملہ ہوا ہے، آپ یعنی جنتا کس نظر سے اسے دیکھتی ہے، ضرور ہمیں کومنٹ باکس میں جا کر ہمیں کومنٹ کر کے اطلاع دیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بروز سنیچر کو شام 7:30 بجے قریب مدھوڑ میں ایک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک 22 سال کا نوجوان محبوب نام کا بربریت کے ساتھ کچھ ظالمین کے طرف سے اس کا قتل ہوا۔ آج شہر مدھوڑ کے بڑے ہستیاں، جس میں ہمارے عالی جناب امبی وکیل صاحب اور ہمارے خواجہ امین صاحب باغبان، دیگر احباب اسی کے مکان پر آئے ہیں تعزیت کے سلسلے میں۔ تو جو مقتول ہے محبوب محی الدین صاحب باغبان، اس کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم محبوب کے والد سے کچھ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کیا حالات ہیں، کیسے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ محی الدین صاحب کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور محبوب ان کا جو لڑکا، وہ ایک ہی اکلوتا لڑکا تھا۔ تو اس تعلق سے تعزیت کے لیے ہم لوگ آئے تھے، تو ان کے والد صاحب سے ہم ذرا تفصیل جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلومات ہوں کہ ان کے گھریلو حالات کیا ہیں، کیسا ان کے آگے کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہ ان کا جو بیٹا طول محبوب جو ہے وہ اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کو بربریت کے ساتھ میں جو قتل کیا گیا، بڑا سنگین معاملہ ہے، لیکن تعزیت تو کرنا ضروری ہے۔ اور ہم آپ تمام سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہماری اس بات چیت کو جو ذمہ داران ہیں ہمارے ملک کے، تنظیمیں ہیں، جیسے مسلم پرسنل ہے، جمعیت علماء ہے، ملی کونسل ہے، بہت سارے تنظیموں کا مجھے کال بھی آیا کہ ذرا حالات معلومات لے کر کے ہمیں پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا آنا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ عالی جناب امبی وکیل صاحب اور خواجہ امین حاجی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو میں ہمارے مقتول محبوب صاحب کے والد محی الدین صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گھر کے حالات کے اعتبار سے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے تھے۔ آپ کے 3 بچے، جس میں لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنے؟ لڑکے 2 جی، ایک لڑکا 2 لڑکیاں۔ اچھا، آپ کا جو جس بچے کا انتقال ہوا ہے وہ اکیلا ہی بچہ تھا آپ کا؟ کیا کام کرتا تھا آپ کا بچہ؟ گونڈی کا کام کرتا تھا، مطلب دوسروں کے ہاتھ نیچے جانا، راب کو لانا، مزدوری کا کام کرنا، یہی اس کا کام تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ حمالی کرتے ہیں مارکیٹ میں، یعنی یہ بھی مزدوری ہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بات اور پوچھنا ہے آپ سے کہ اب آپ کے گھر میں ایک تو آپ ہی ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، اور آپ کا جو مقتول بچہ جو شہید ہوا ہے، اس کے بعد کے حالات آپ کیسا آپ کا وقت گزرے گا؟ آپ کیا امید لگائے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اب جو انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے، معاملات جو FIR ہوا ہے، اس تعلق سے آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ ہاں، بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ لوگ، لیکن آپ صبر کیجئے۔ پوری قوم اور چاہے اس میں کسی بھی دھرم کا انسان ہو، وہ آپ کے ساتھ میں ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ یہ ہوتا ہے، صبر کیجئے آپ۔ اور پورے جماعت کے بڑے ہیں،
चाहे वो किसी भी कौम के हों, सब आपके साथ में हैं। ये मामला कभी ऐसा हुआ नहीं था, आपके साथ पेश आया है। ज़रा सब्र कीजिए, और इस ताल्लुक़ से जो भी कार्रवाई हुई है उसके लिए हमारे आली जनाब अम्बी वकील साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अब तक जो कार्रवाई हुई है और जो मामला पेश आए हैं उस ताल्लुक़ से 2 बातें ताज़ियत के तौर पर मोहिउद्दीन साहब से भी अर्ज़ करें, हम सामईन को भी अर्ज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। देखो, हादसा जो है बहुत ही गमगीन है, बहुत ही अफसोस का हादसा है। ऐसा नहीं होना था, मगर अल्लाह की जो मसलियत है, अल्लाह के जो फैसले हैं, उसमें बंदे का कोई दखल नहीं है। हिम्मत से काम करो, हिम्मत के सिवा सब्र करो, मरहूम के लिए दुआ कीजिए। अगर आप ऐसा और कानूनी नहीं करेंगे तो फिर दफ्तरी और कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे ही इंतकाल की खबर या मर्डर की खबर पहुंची है तो फ़ौरन जो है सारे हमारे बड़े पहुंचकर या कंप्लेंट दिए हैं या फायर हुआ है, और कातिल को अरेस्ट भी किया गया, और उसके साथ में जिन पर शुबा था उनको भी अरेस्ट किया गया। तो तहकीक तशखीस जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, और कल जो है बड़ी तादाद में कौम मिलत के लोग जमा होकर जो है ताज़ियत में इसमें तज़ीद व तकमीम में हिस्सा लिए। एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, और बस स्टैंड के करीब बस स्टेशन सर्कल में जनाजा रख कर जो है सारे लोग तकरीबन घंटा 1.5 घंटे के लिए तमाम सड़क को भी आमद रफ्त को रोका गया, और सारे हमारे अफसर्स भी बहुत साथ दिए हैं। पुलिस स्टेशन वाले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले बड़े एक शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए काफ़ी, और हमारे नौजवान भी बिल्कुल बेचारे खामोशी के साथ वो मैयत में शरीक रहे। और डीसी साहब को और एसपी साहब को जो है हम लोग मेमोरेंडम भी दिए हैं, अरीज़ा दिए हैं कि भाई इसमें सही मानों में इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, और इसमें पक्ष का ज़ात का कोई भी ये लाए बगैर जो है पक्षातीत और जात्यातीत होकर जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, और इन्वेस्टिगेशन में पूरे कौम और मिलत का साथ है। दूसरी बात जो इनकी रही हालत जो है माशी हालत, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी बहुत ही अफसरदा है, काबिल रहम है। तो लिहाजा उस ताल्लुक़ से भी नौजवान सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी माली इमदाद भी की जाए। वो कल चूँकि हालात बहुत ही ज़्यादा गम के थे, उस वक्त में ये मसला हम नहीं ले सके किसी वजह से। इंशाअल्लाह नौजवान और जमा होकर तय कर लिए हैं कि घूम फिर कर जो है इनके लिए माली इमदाद का इंतज़ाम करेंगे। मस्जिद वार मोहल्ला वार पहुँच कर जो है एक माली नौजवान तबका हमारा खड़ा है। तो आपके साथ बड़े नौजवान बुज़ुर्ग हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आप बेफ़िक्र रहें, जो होना था वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, उसमें किसी का दखल नहीं है। सब्र और दुआ आप दो करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह जो है हालात को साजगार बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अल्लाह की मसलियत हम नहीं समझ सकते। हिम्मत और सब्र के साथ काम लें, घर वालों को भी सब्र की तरकीन करें, और जो हालात आते हैं उस पर सब्र करना ही ईमान का जुज़ है। क्योंकि हालात आते हैं तो सब्र करना है, अच्छे हालात आते हैं तो शुक्र करना है। सब्र और शुक्र के दरमियान जो है वो ईमान बसता है। हमें सब्र के साथ हिम्मत के साथ रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ है। हम तमाम जमात के साथ ही, हम तमाम बिरादरी जो है आपके साथ, चाहे वो हिंदू हों मुस्लिम हों, सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह सही मानों में वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और जो मुजरिम है उसको बाकायदा अदालत के सामने पेश करके उसको जो सज़ा दिलवानी है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ इंसाफ हो और घर वालों को भी इंसाफ मिले। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, और मरहूम की करोड़ मग़फ़िरत जन्नत नसीब फरमा, करोड़ जो है उसको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। जो हादसा हुआ है हमारे बावन बिरादरी का लड़का है, वो हमारे भाई का लड़का, 2-3 बच्चे, 2 और बेटे हैं, एक मर्द बेटा था। हालात ही बहुत कमज़ोरी हालत थी पहले से उनकी, वही रामना वही खाना उनका पेशा था। बाप हमाली करता है, बेटा ढूंढे काम जाता था। सब जने साथ वो छोरा लड़का सब जने साथ, हिंदू लोगों के साथ, मुसलमान लोगों के साथ, गली में बिरादरी में बहुत अच्छा था, बहुत नाम लगाया था लड़का वो।
उनके दोस्ता में उसके कौन सा प्लान से क्या करेंगे नहीं का मालूम नहीं पड़ा। उसको एक जगह में बुला ले जाको 3-4 जनों बुला ले जाको उसका बैठ को घर में बैठे से बुला ले का को फ़ोन कर बुला ले का को उसको वहाँ बैठ के मशवरा करके बैठ के बात करते उसका मर्डर किए हैं। उसके चाकू से 20-25 बार उसको चाकू से मार के उतना हुए तो भी वो छोड़ा जरा 20 बार तड़पने के देख के ऊपर 2 बार उसको बड़ा पत्थर लेके चेहरे के ऊपर डाल के चेहरा पूरा जख्म किए हैं। इसके पीछे किसका भी हाथ रहेगा, किसका भी उसका बैकग्राउंड है, पूरा हमें उसका इंचार्ज करो, तुम्हें पूरा तनिखे करो करके बोले कि हमें डिपार्टमेंट में मनवी दे है और सभी डिपार्टमेंट से और मनवी दे के कल जो उसके महत टाइम में सब हमारे बिरादरी के लोग जम के एक जुलूस निकाल के उनके बारे में कहता है पूरा जो मशवरा यो करो करके बोला है, तनिखे करो करके बोला है। नाजरीन, ये थे हमारे ज़िम्मेदार अहबाब और मकतूल के वालिद गिरामी भी, इनको सब्र दिलाया गया, बताया गया। मैं अपनी तरफ से भी एक दरख्वास्त आप हजरात को अर्ज़ करना ये चाहता हूँ। जो बच्चा लड़का जो कत्ल हुआ जिसका, उसका नाम है महबूब और उसकी उम्र 22 साल थी। किसी मामले से जोड़ करके फ़िलहाल इस बात को नहीं देखा जा रहा है, तो इसलिए हम तमाम मुस्लिम जमातों से भी अपील करते हैं कि हमारे शहर मुदोड़ में मुहियुद्दीन साहब बागवान जो महबूब बच्चा कत्ल हुआ उसके वालिद हैं, और जो ये घर पीछे इनका है, ये घर भी इन्हीं का है। एकदम ये माली एतबार से ये हजरात कमज़ोर हैं, खस्ता हाल हैं, राबने वाले एक ही बच्चा था उनका, उसी को कत्ल कर दिया गया। तो तमाम मुस्लिम जमातें, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल हो, जमीयत उलमा हो, मिली काउंसिल हो, और भी दीगर जमातें हैं, मुस्लिम जमातें, तंजीमें, उन हजरात से हम दरख्वास्त करते हैं कि बाकायदा तौर पर आप हजरात एक बाप की हैसियत से, एक कौम बिरादरी की खिदमत की हैसियत से हमारे मुहियुद्दीन बागवान साहब की खूब मदद कीजिए। यहाँ पर आइए, इनकी ताज़ियत कीजिए, इनको सब्र दिलाइए, और जहाँ तक हो सके हमारी ये बात अगर सरकार तक पहुँचे तो हम सरकार से भी यही अपील करेंगे कि ये मामला किसी ज़ात या धर्म को न देखते हुए, एक बच्चा, मासूम बच्चे का कत्ल हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, सरकार खुद अगर इन्वॉल्व हो करके इसका अच्छी तरह ये मामले को हल करने की कोशिश करे तो बहुत ही बेहतर होगा। हम यही दरख्वास्त आप हजरात से करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस आने और बातचीत करने की और जो हमने कोशिश की है इसे कबूल फरमाए, और ख़ास कर मुहियुद्दीन साहब के हक़ में, और इनका जो बच्चा मकतूल हुआ है, कत्ल हुआ है जिसका महबूब, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और इन तमाम अहबाब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। नाजरीन मुतवज्जह हों और ख़ास कर मुहियुद्दीन साहब की हालत देखकर आप हजरात मुतवज्जह हों और इनका साथ दें सब्र में, और जितने भी जो भी काम है इनके आगे, इनका मकान भी बनाना है, ये भी मसला है, और इनके नौजवान 2 बेटियां भी हैं, ये भी मसला है, तमाम मसाइल हैं। आप हजरात गौर करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और बात आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि जो मामला हुआ है, आप यानी जनता किस नज़र से इसे देखती है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके इत्तला दें। फ़कत वस्सलाम। डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल वहाब, MRF TV, कर्नाटका।